Good evening, both the sirs, and good evening, attendees. Today we are here to talk about very important topic, and I, Mr. Ajinkya Dalal, welcome you on the behalf of I Am the Best Mom. So, topic is what is Omicron and what you should know about it. People are calling it as Omicron, and let us learn it right from the pronunciation to the minute details about it. And to talk about the topic, we have with us Dr. Anil Jindal. He is a laparoscopic surgeon and andrologist and reproductive medicine specialist of Jindal Hospital. Along with him, we will have our host of the series Cover Page Cover Story, Dr. Anuj Rastogi sir. He is a senior neonatal pediatrician at Meerut. So both of them are together today, and we are fortunate to have both of them. Sir, over to you. And before we start the session, I would like to start with the quote. If you don't have any friends with COVID right now, you don't have friends, because every day or every hour you will be getting calls or you will be interacting with someone who has recently diagnosed with COVID. So be it virtually, be it physically. So take care of yourself and just try to understand whether you have real friends or not. So with this, I will hand over the session to Anuj sir. Sir, please initiate. Thank you, Ajinkya. Thanks a lot. Few days ago, it was Omicron at some places. Then thereafter, it was semi-Omicron. And now this is Omicron and Omicron. It is more than 70-80% of the population who is suffering from Omicron. So Dr. Jindal, you are welcome on this platform. And you please tell us what is this Omicron virus and is it different from the Delta variant of the coronavirus? A very interesting question. And thank you very much, first of all, Dr. Anuj, for inviting me, because I love to be here at a place where you have somebody so, I would say, handsome and intelligent together as Dr. Anuj Rastogi. So going ahead with this, see the difference between Omicron and Delta, that there have been about 32 mutations. मतलब 32 mutation हो चुकी हैं on the surface, which means the surface proteins have so many new mutations that it is close to a different virus on the surface. So COVID virus and coronavirus जो base तो same है, पर तो there is one problem which is happening with this, and this is the problem which is happening. So luckily, this is not so much serious, which is landing people into the ICUs. And at that moment of time, few months ago, it was a shortage of oxygen and of the COVID. But this time the scene is definitely changed. People are safe, and it appears to be this is just cold in the nose or cold in the throat. Correct, correct. So it's not more than that. Maybe this is the vaccination which has helped, because vaccination produce two kind of immunity through B cell and T cell. So B cell antibodies, they are working mainly over the upper airways mucous membrane, and T cell preventing them landing virus into the lower airways. So Dr. Anuj, fantastic. In fact, मैं सोचता हूँ एक आम आदमी के लिए समझाने के लिए कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक बी सेल की और एक टी सेल की. तो बी सेल की इम्यूनिटी वो होती है जो हम सुनते हैं ना, एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी वो होती है बी सेल की. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे डॉक्टर अनुज ने कहा कि द बी सेल इम्यूनिटी विच इज द एंटीबॉडी इम्यूनिटी which has been developed by the Delta virus or the vaccination which I have, it has partially passed it. So Omicron is passing the B cell immunity. And that is the reason that despite infection, despite vaccination, infection is taking place. But the interesting thing is that the T cell immunity is still there, because of which the effect and the bad effects which are there is not happening. And this is very interesting. So this is what exactly is happening कि जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं. एक बहुत प्यारी सी स्टडी है साउथ अफ्रीका की. तो साउथ अफ्रीका की स्टडी में जहाँ ये हुआ था, एक बड़ी लंबी इन्होंने स्टडी की और ये देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है और डेथ बहुत कम है उन लोगों में जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है. और कारण ये है कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उसमें टी सेल काम कर रही हैं और उस वजह से खराब चांसेस नहीं. अच्छा, एक चीज और है, ये हल्की और क्यों है, जरा गौर से सोचिएगा.
क्योंकि इस बार एल्डर पॉपुलेशन की जगह यंगर पॉपुलेशन अफेक्टेड है, क्योंकि एल्डर पॉपुलेशन तो वैक्सीनेट हो चुकी और जो यंगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है उसको ये वायरस कम अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक फायदा है। और एक चीज और भी है, ये एक अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नीचे लंग्स में जाता नहीं। तो अपर रेस्पिरेटरी होने के कारण थोड़ी खांसी वगैरह जल्दी होती है, पर क्योंकि नीचे नहीं जाता तो लंग्स की प्रॉब्लम और जो पिछली बार ऑक्सीजन की मारा मारी मची थी वो इस बार नहीं हो रही। ये डॉक्टर अनुज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस बारे में। राइट। अब की बार डॉक्टर सुनील, हमने जो आपने अभी बताया कि अपर एयरवे की प्रॉब्लम है, तो एक बीमारी होती है छोटे बच्चों में, क्रूप, अच्छा। जो करीब जाड़ों के समय काफी कॉमन है, बट इतनी कॉमन नहीं है कि हर दूसरे दिन एक क्रूप का बच्चा हमारे पास आ रहा हो। एंड उसको हमारी साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, या फैमिली के लिए वो होती है कुत्ता खांसी या ब्रेसी कॉफ, अच्छा। ड्रम वाली खांसी। अच्छा। एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम द 11 PM अराउंड इन द नाइट। बच्चा ठीक सोता, 11 बजे अचानक से धौनों की खांसी शुरू हो शुरू जाती हो है। जाती And it was presumed it is because of this Omicron virus, which is causing effect on the larynx of the young kids, and they are producing this croupy cough. So has it increased? That has increased. That has definitely increased, and they are quite a few got admitted also because they have some more issues of asthma or something else. So they get admitted. And Dr. Anuj, if we getting it tested, are we getting Omicron in it? It is difficult to test because you need to have a PCR study, and that takes at least a week. And within a week, your patient get better and they reach to home. So it is really difficult to ascertain this is because of Omicron. But the world literature is advocating this is increase in the croup is because of Omicron infection. Okay. Interesting. But still, croup is I did not find any very serious kind of croup, because sometimes you need to ventilate them or sometimes you need to cut their throat and put a tube there. So it was not required, luckily, and by the grace of Almighty, all the children, they are really doing well. Fantastic. And we are lucky, so lucky our children are not getting so sick. And So, there is very teeny tiny in point decimal chances of seriousness with this Omicron. तो समझने की चीज ये हुई कि अगर हम गौर से देखें तो एडल्ट्स के अंदर भी हल्का है और बच्चों में भी कम है। अब इसके चांसेस इस वायरस के अपर रेस्पिरेटरी होने के कारण एक, नंबर 2 वैक्सीनेट पॉपुलेशन होने के कारण 2, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यंगर पॉपुलेशन जो अफेक्ट कम होगी उसको होने के कारण ये चीज शायद सामने आ रही है। Right. But vaccination is increasing, and I will request from all the audience, they should spread awareness about the vaccination. और luckily अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। आपके आसपास PSCs हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ सब जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, एक वर्कर हैं जो साथ में लगे हुए हैं, तो आपको बूस्टर लगना है। आपकी सेकंड डोज लगनी है तो सेकंड डोज लगवाइए, और अगर आपका बच्चा 15 साल से बड़ा है तो उसको अवश्य लगवाइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब छोटे बच्चों में लगना शुरू हो जाएगा तो हम आपको उसके लिए भी बताएंगे, तब आप छोटे बच्चों को भी लगाइएगा। देखिए इसके पीछे नेशनल गाइडलाइन होती है, एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस चलता है, सेफ्टी प्रोफाइल्स देखे जाते हैं, क्योंकि एक नई बीमारी है, वैक्सीन भी नई है। जब वो बच्चों में पूरी तरह टेस्टेड हो जाएगी कि सेफ है बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट उसे बच्चों के लिए भी अलाउ करेगी। तो मीनवाइल आपके जो बाकी के वैक्सीनेशन है एटलीस्ट उन्हें तो कंप्लीट कर लीजिए। एक वायरस है फ्लूरोना इज ए फ्लू एंड कोरोना, so at least you have vaccine for flu, so you should get this flu vaccine every year, you should get. And for children this is especially very important, and they will have at least 30 to 40% less chances of getting cold and cough because of this flu vaccine. So at least flurona में flu तो cover कर दीजिए आप, कोरोना जब लगेगी लग जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक सवाल हमेशा इसमें पूछते हैं आज के दिन लोग, और वो कहते हैं कि साहब इसके स्प्रेड में और डेल्टा के स्प्रेड में कोई फर्क है क्या? देखिए जो अभी तक साउथ अफ्रीका की स्टडीज हैं, 4 स्टडी हुई हैं, उनमें जो ग्राफ बने हैं, जितने जो भी वायरस बहुत तेजी से गया ऊपर, वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है। जो उसका बेस होता है वो नैरो होता है। तो इसका जो रिपीटेशन रेट है वो 1:4 है।
जो डेल्टा का नहीं था इतना ज्यादा, ये डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैला ओमिक्रॉन और जल्दी ही नीचे आ जाएगा। देखिए ये डेल्टा से 60 गुना मतलब 60% ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन ये घातक नहीं है। तो इसका फायदा क्या है, देखिए एक लॉन्ग टर्म में आपको बताता हूं। तो सॉरी, ये क्या कहूं, डॉक्टरों की जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है पूरी कहानी। तो अब ये है क्या चीज कि क्योंकि ये स्प्रेड बहुत तेजी से करता है, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि यही वायरस स्प्रेड करेगा और इसकी इन्फेक्टिविटी भी पहले 3 दिन में हाई होती है कंपेयर टू डेल्टा। तो होता क्या है, इसमें आइसोलेशन करीब 7 दिन के लिए कहा है, जबकि डेल्टा में आइसोलेशन करीब 14 दिन के लिए कहते थे। तो क्योंकि 7 दिन के लिए आइसोलेशन कहा है, तो हमको एक चीज समझनी है कि अगर आपको खांसी, जुकाम, हल्की सी हरारत, बॉडी में दर्द है, तो टेस्ट जरूर करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद में आपको अगर निकलता है तो रेस्ट कर लीजिए। इसमें तो बल्कि वो जो आइवरमेक्टिन वगैरह थे ना, आइवरमेक्टिन और दुनिया भर की दवाइयां, रेमडेसिविर वगैरह, इसमें इनका रोल ही गाइडलाइन के हिसाब से खत्म हो गई है। देखिए एज ए डॉक्टर सुनील भाई, हम वो दवाइयाँ यूज करते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि दे आर, इफ दे विल नॉट बेनिफिट दे विल नॉट हार्म आल्सो, करेक्ट एंड दे विल बाय योर टाइम आल्सो। करेक्ट। तो जिसमें विटामिन सी हो गए, जिंक हो गए, काढ़े हो गए, बकरी का दूध, गाय का दूध और तमाम चीजें नहीं, हैं। भैंस का दूध जरूर पीजिएगा। नहीं, ये एक हल्दी चीज तो हल्दी डाल के और कई लोगों ने काढ़े इतने पिए कि उन्हें गैस्ट्राइटिस हो गई। तो काढ़ा भी जरा अगर पिए तो जरा गौर से पिए और हल्का सा पिए, ज्यादा पीने में दिक्कत हो सकती है। एक गिलास पानी में 4 लौंग और 4 पत्ते तुलसी जी के डाल के पीते रहें, गला आपका तर बना रहेगा, ठीक रहेगा। और इस दौरान खांसी की ज्यादा वजह ये भी है कि हम क्योंकि हीटर यूज कर रहे हैं या कोल्ड वेव चल रही है नॉर्थ इंडिया में, और हीटर जो है, हम ऑयल हीटर ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, ड्राई हीटर यूज करते हैं या ब्लोअर्स यूज करते हैं, दैट कॉजेज ड्राइनेस इन द एयरवेज एंड दैट ट्रिगर्स द कॉफ। कॉफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे से ना एक दिन एक ने मुझसे ऐसी पूछा, और आजकल बहुत लिखा जा रहा है कि साहब, इज दिस द एंड ऑफ द पेंडेमिक? तो एंड ऑफ द पेंडेमिक एक बड़ी अजीब सी चीज मेरे दिमाग में आई, तो आपसे मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि पहली चीज तो अपने को ये समझनी है कि करीब करीब इस दुनिया के अंदर जब 80% आदमी इन्फेक्ट हो जाएगा, तो एक हर्ड इम्यूनिटी बनके और वायरस स्प्रेड करने की जगह नहीं होगी, सब जगह एंटीबॉडी मारेगी वायरस को, तो वायरस के पास में खुराक नहीं होगी, हम लोग नहीं होंगे। पर वो 70% होने के लिए वायरस कोई ऐसा ही चाहिए था, ओमिक्रॉन जैसा, जो बहुत तेजी से फैले, कष्ट ना दे, लोगों को ना मारे, और जब ये फैलेगा तो क्या होगा, डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। इस समय 5% से कम लोग डेल्टा से अफेक्ट हो रहे हैं, 95% ओमिक्रॉन से हो रहे हैं। तो क्या किया, इसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया, और जब इसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया तो इसने स्प्रेड कर दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर साहब एक स्टडी पढ़ी, आपसे मैं डिस्कस भी कर रहा था, आप भी कर रहे थे। उस स्टडी में यह निकला कि इसकी एंटीबॉडीज डेल्टा के अगेंस्ट भी काम करती हैं। तो हुआ क्या कि इसकी एंटीबॉडी बन गई, डेल्टा के अगेंस्ट काम किया, तेजी से फैला, डेल्टा को जगह नहीं मिली, एक तेज दौड़ने वाले बच्चे ने सारी की सारी चीजें खींच ली, और धीरे दौड़ने वाले खतरनाक आदमी को कुछ मिला नहीं। तो शायद चलते हुए ये ओमिक्रॉन बहुत बुरी तरह से स्प्रेड करके एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार कर सकता है। बल्कि बल्कि आपको एक बात कहूं छोटी सी, मैं तो बल्कि एक पढ़ भी रहा था वहां पे कि 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ऐसा हो जाए। दूसरा हो सकता है कि डेंगू जैसा हो, जो बहुत सारे वेरिएंट हो, और बहुत सारे वेरिएंट इस तरह के बुखार करके किसी किसी को कष्ट दें। और तीसरा हो सकता है कि कोविड लुप्त हो जाए अल्टीमेटली। तो ये 3 चीजें इसमें मुझे लगता है हो सकती है। और ओमिक्रॉन, अजीब सी चीज कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद ओमिक्रॉन एक ब्लेसिंग बन के निकली इसके लिए। अभी तक तो ऐसी लग रहा है लग रहा डॉक्टर है। सुनील, ये ब्लेसिंग ही है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और आप क्या सोचते हैं, हाउ वी कैन टर्न दिस टाइड टुवर्ड्स अस? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब इसके लिए अगर आप मुझसे सच पूछें तो 2 तरीके हैं। एक तरीका जो पहले मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि जैसे पहले रुबेला पार्टी होती थी। रुबेला पार्टी मतलब क्या होता था, रुबेला एक बीमारी होती थी। इस बीमारी के अंदर अगर आपके पेट में बच्चा है और रुबेला हो गई तो आपका बच्चा डिफॉर्म्ड होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जब ये मालूम चला इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी,
तो पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी यंग बच्ची को अगर रुबेला हुआ है तो वो मतलब सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे बुलाते थे कि सबको रुबेला हो जाए, इसके बाद में इनको रुबेला बच्चे होने के टाइम नहीं होगा, रुबेला पार्टी। तो मेरे दिमाग में आया, अजीब सी चीज है लेकिन कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन के टाइम पे अगर ओमिक्रॉन पार्टी हो जाए और दुनिया को लग जाए, कोई परेशानी ना हो तो एक इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन खैर ये तो खैर एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, बट अदरवाइज आई थिंक जो हम कर सकते हैं, जो प्रिकॉशंस हम नॉर्मली ले रहे हैं वो ले, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। सुनील भाई की बात पे मुझे एक बात याद आई कि जैसे इन्होंने रुबेला पार्टी करी और इसी की तर्ज पे एक मम्स पार्टी का भी रहा, बट हाँ। मम्स के बारे में पता चल गया इम्पोर्टेंस करता है और और मेल को स्ट्राइल भी कर सकता है। तो सब मम्स के दौरान सब लोग आइसोलेट होके रह गए, बट लकीली वी हैव वेरी गुड वैक्सीन अगेंस्ट मम्स एंड रुबेला। और ग्लैक्सो कंपनी की बहुत बढ़िया वैक्सीन है जो हम अब मीजल्स की जगह भी बच्चों को लगाते हैं 9 मंथ से ही। अच्छा 7 to 9 मंथ पे लगा देते हैं अच्छा और उसके बाद रिपीट करते हैं 15 मंथ पे, और फिर 2 साल या 5 साल पे हम रिपीट करते हैं। तो अब हमारे पास बहुत अच्छे वैक्सीन हैं और पेरेंट्स को मैं यही सबसे दरखास्त करूंगा कि अपने कार्ड को चेक करें, क्योंकि 6 महीने के बाद थोड़ा कॉम्प्लासेंसी आ जाती है वैक्सीन के मामले में। और आपके जो भी आपके डॉक्टर हैं, प्रिय डॉक्टर हैं, आप उनसे जाके अपना कार्ड जरूर रिव्यू कराएं और जो वैक्सीन रह रही है बच्चों की वहां उन्हें सिक्योर्ड करें। जो हमारे हाथ में एटलीस्ट वो तो हम कर लें। वाकई में आप सही कह रहे हैं। सच बात, मतलब देयर इज अ मैसेज टू बी गिवन व्हिच डॉक्टर अनुज इज गिविंग एट द मोमेंट, दैट प्लीज टेक एंड लुक इनटू प्रिवेंटिव मेडिसिन। बीमारी होने के बाद में इलाज करने से बेहतर है कि वो बीमारी ना हो। और इनफैक्ट ये दुनिया, मुझे लगता है डॉक्टर अनुज, आफ्टर सम टाइम इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स प्रिवेंटिव मेडिसिन। It is going already going. And but the only very few people they realize the importance of preventive medicine, and everything is preventive medicine because once you get ill, there are, as a doctor आपको पता ही है कि अगर आपको pneumococcal meningitis हो गई तो there are 7 to 8% chances आप डेफ हो जाओगे। डेफ हो जाए, सही So, कह रहे हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं आपके, हो सकता है आपको दौरे पड़ने लगे। तो जिन चीजों की वैक्सीन अवेलेबल हैं वो तो बिल्कुल मिस करना बनता ही नहीं। नहीं बनता। तो बहुत बढ़िया ये ओमिक्रॉन की चीज सामने है। एक चीज डॉक्टर अनुज सोच रहा था, जैसे पिछली बार लोग घरों में घुस गए थे, इस बार दुनिया फिर भी अपनी रफ्तार पे चल रही है। और इस रफ्तार के चलने के कारण मुझे लगता है कि इकोनॉमी और मोर देन इकोनॉमी, लोगों का रोजमर्रे का काम इस रूप में नहीं जाएगा जैसे पहले गया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं एज ए पीडियाट्रिशियन, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सोचता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं तक सीमित है, बच्चों की दुनिया में रहता हूँ। ये जो वर्चुअल स्कूल बन गया ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुरू में लगा था कि जो वर्चुअल स्कूल है ये बच्चों को थोड़ा पेरेंट्स को भी रिलीफ देगा, बट हुआ उल्टा ही। उससे बच्चों के अंदर मेंटल इलनेसेस बहुत बढ़ गई हैं, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी अब बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और बच्चे एक एक दो दो साल पीछे चले गए हैं। बच्चों में बहुत फर्क पड़ा है। पहले एक बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बच्चा जब स्कूल से घर आता था माँ को भी बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि अब ये पढ़ के आ रहा है, इसके लिए फला दाल बनाइए या फला रोटी बनाइए, वो बेटा आके खाएगा। और वो सब सारा जो एक सोशल मिलियू था वो सब चेंज हो गया और ये बड़ा लंबा खिंचता जा रहा है। मुझे इसी बात की बहुत चिंता सताती है कि स्कूल कब तक बंद रहेंगे और कब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक, आपने जो कहा इसमें एक ऐड करूंगा, जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे 3-3 साल के, वो लिटरली सिमट के 1 साल के हो गए हैं, जिसमें 1 साल में डिग्री किसी रूप में मिल जाएगी और 3 साल की ट्रेनिंग 1 साल में हो भी नहीं सकती। इनफैक्ट मेडिकल ट्रेनिंग में बहुत फर्क पड़ा है। मेडिकल ट्रेनिंग में जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया कोविड की शुरुआत में, उसके 2 साल तो अस्पताल के कोविड बनने के बाद में कोविड देखने में निकल गए। और ये बड़ी भारी डॉक्टर अनुज की जरूरत पड़ गई है इस समय थिएटर में। इनफैक्ट आज का प्रोग्राम जो रूबरू होके बात कर रहे हैं, वो जरूरत भी इसलिए पड़ रही है कि थिएटर के अंदर जरूरत पड़ गई है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं ओमिक्रॉन के जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूं आज के दिन,
और वो कंप्लीट करने में वो क्वेश्चंस बड़े सिंपल सिंपल से हैं जो मैं सोचता हूँ सबको इसका बोध होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि क्या दूसरी एक और वेव आएगी? तो एक और वेव आने की संभावना हमेशा रहेगी क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करेगा, और जब ये वायरस म्यूटेट करेगा एक और शक्ल का होगा, उसकी इन्फेक्टिविटी अलग होगी और एंटीबॉडीज उस पर अफेक्ट नहीं करेंगी, तो आ सकती है एक और वेव आए। और सबसे बढ़िया जो चीज एंड में होती है, जो कहना की बात है कि क्या ये ओमिक्रॉन रहेगा या कोविड रहेगा। 2 साल हो गए हमें झेलते झेलते, परेशान से हो गए, दुनिया पलट गई, रिश्ते पलट गए, जाना आसपास पलट गया, शादी ब्याह चेंज हो गए, और इसने एक अलग दुनिया बना दी है। क्या वापस वो दुनिया आएगी? अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट को देखते हुए तो आएगी। नॉर्मली कोई भी पैंडेमिक 3 साल के आसपास रहा है, और ये भी शायद इतना ही रहेगा, और अल्टीमेटली तब्दील हो जाएगा ये कॉमन कोल्ड में, डेंगू में, उसी की तरह, या अल्टीमेटली लुप्त हो जाएगा, या कभी कभी आया करेगा। तो यही मैं सोचता हूँ, और दिस आई थिंक इज द थिंग्स विच वी नीड टू नोट। एंड 5 चीजें अगर हम कहें, ओमिक्रॉन जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आएगा, हाईली इन्फेक्टिव है, ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए खांसी और हरारत पहली चीज होती है। सारी प्रिकॉशंस जो हम दूसरे कोविड के लिए लेते थे वो ही लेनी है। अगर कोविड डिटेक्ट हो गया तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, विटामिन सी ले लीजिए, विटामिन ई ले लीजिए, ये सब चीजें ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, फॉलिक एसिड ले लीजिए, बुखार है तो गोली ले लीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन डाउन जाता है तो अवश्य डॉक्टर को कंसल्ट करके हॉस्पिटलाइजेशन की सोचें, पर इसमें बहुत कम ऑक्सीजन डाउन जाती है। तो ये तो इस कोविड का हुआ। क्या ये आगे आएगी? पता नहीं। क्या ये इसका एंड हो सकती है? हो सकती है। बहुत सारी चीजों को अफेक्ट किया है, हम सब ये जानना चाहते हैं। तो एंड में बस एक ही बात कहूंगा, आई थिंक इट गेट्स ओवर फास्ट, एंड मे गॉड बी विद ऑल ऑफ अस टू हेल्प अस in these moments and in these times. Thank you very much. सर कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ हाँ प्लीज प्लीज। तो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुछ स्टेट्स में स्कूल शुरू हो गए हैं, कुछ स्टेट्स में अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, बट व्हाट एज अ पेरेंट शुड डिसाइड वेदर दे शुड सेंड द चाइल्ड फिजिकली टू द स्कूल, वर्चुअली टू द स्कूल, और दे शुड वेट फॉर सम टाइम। जहाँ पे शुरू नहीं हुए वहां शुरू नहीं हुए तो जाने की बात ही नहीं है, और जहां पर स्कूल शुरू हुए हैं वहां पर आज के दिन आपकी एक पर्सनल चॉइस है। वैसे तो देखिए, ये ओमिक्रॉन किसी रूप में खतरनाक नहीं है, जिस तरह से डेल्टा वायरस था, पर खतरे का कुछ मालूम नहीं होता। चाहे 100 में से एक को बुरी तरह अफेक्ट करे, पर वो एक तो अकेला रहता ही है। तो ये क्वेश्चन पेरेंट्स के अपने आप देखने का है। लेकिन अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, हाथ धो रहे हैं, कोई भी बच्चा जो खांसी का हो वो स्कूल नहीं आ रहा, ये सब चीजें चेक हो रही हैं, रनिंग नोज वाले, कोल्ड वाले स्कूल नहीं आ रहे, और स्कूल खुल रहा है, तो फिर स्कूल में जाना एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। मुझको पर्सनली यही लगता है, क्योंकि बच्चे वाकई में स्कूल ना जाके एक अलग दुनिया में चले गए। राइट सर, और आजकल देखा जाए तो बच्चों में कफ कोल्ड सीजनल भी हो सकता है, सो हाउ टू डिफरेंशिएट, एंड क्या हर एक कफ कोल्ड और फीवर ओमिक्रॉन ही है, मतलब हाउ टू डिफरेंशिएट दैट? देखिए एडल्ट्स के अंदर जिस तरह से ये स्प्रेड कर रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉफ विद कोल्ड एंड इफ देयर इज बॉडी एक एंड फीवर इज टर्निंग आउट टू बी कोविड पॉजिटिव, मोस्ट एडल्ट्स। इन चिल्ड्रन, ये जो खांसी कही थी आपको डॉक्टर अनुज ने, ये जो खांसी कही थी, जो एक बहुत ही रफ सी खांसी होती है, ये खांसी अगर बच्चे को है तो चांसेस हैं कि वो कोविड मौजूद हो। अपने बच्चे को अगर ये खांसी जुकाम कोई भी चीज है तो ये मान के चलिए कि स्कूल नहीं भेजना। लेकिन अगर ये नहीं है और बाकी लोग भी इसकी एहतियात बरत रहे हैं, मतलब बाकी पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि अगर खांसी जुकाम है और हम नहीं भेजेंगे, तो फिर आपका बच्चा सेफ रहेगा, एज लॉन्ग एज स्कूल में हर पेरेंट इस बात को समझ के चल रहा है। थैंक यू सर। और तीसरा एक क्वेश्चन था कि क्या फीटस को ये हो सकता है, देयर आर मेनी प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर स्टिल हैविंग एंजाइटी अबाउट इट,
So ये बड़ी अलग सी चीज है, इसकी कोई स्टडी नहीं है, इसकी कोई कहानी नहीं है। फीटस को नॉर्मली नहीं होता, लेकिन जो डेल्टा वायरस था वो जब अफेक्ट करता था, इस वाली ओमिक्रॉन तो बहुत हल्का है, मतलब इसका तो आगे है नहीं, पर जब अफेक्ट करता था उस टाइम पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी इन टर्म्स ऑफ द ब्लड गोइंग टू द फीटस, आईयूजीआर, द चांसेस ऑफ द फीटस बिकमिंग स्मॉलर। ये नहीं कि फीटस को कोविड हो रहा है, मदर को कोविड होने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स थे, उन साइड इफेक्ट्स की वजह फीटस के पास में, जो मैं कहूंगा खुराक या ब्लड सप्लाई कम पहुंचने के अलावा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स अवश्य हुई, मदर को भी और बच्चे को भी। absolutely, sir. And as a last question, sir, what is your message on the moral grounds? Because apart from the physical effects of COVID, there are consequences on the moral and the mental behavior as well. So, on moral grounds, what is your message to the attendees, sir? मतलब मॉरल ग्राउंड मींस पर्टिकुलरली Means if I'm suffering from some symptoms, whether ओके I should get ओके tested immediately and आई गॉट how इट। I can still देखिए follow देखिए it. देखिए, मैं तो अपने बारे में शेयर कर सकता हूँ। Yes. अब से करीब 2 हफ्ते पहले मुझे कोई बुखार नहीं था, मुझको हल्की सी हरारत हुई और मैंने इमीडिएटली टेस्ट कराया अपना कोविड आरटीपीसीआर। रैपिड एंटीजन की बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं, मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, टेस्ट कराते ही मैं अपने को आइसोलेट कर गया, मैं कोविड पॉजिटिव आया। मैंने को अपना आइसोलेट करके अपने को बंद रखा करीब करीब 7 दिन। उसका आपको रीजन बताऊंगा। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं चाहता उनको हो। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैं नहीं चाहता उनमें से किसी को हो, मेरे स्टाफ को हो, किसी को हो। तो अगर आपको, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मेरे किसी, इस चक्कर में मेरी फैमिली में किसी को नहीं हुआ, जबकि बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। मेरे स्टाफ में किसी को नहीं हुआ, किसी पेशेंट को नहीं हुआ हमसे, क्योंकि मैंने अपने को आइसोलेट कर लिया। तो अब अल्टीमेटली मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने फोन पे क्या कहा कि साहब आपने टेस्ट करा लिया इसलिए कोविड बन गया, टेस्ट नहीं कराते तो ऐसी खांसी जुकाम में निकल जाते। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल निकल जाते, मुझे तो बुखार भी नहीं हुआ। पर सच ये है कि मैं पर्सनली एक कम्युनिटी के लिए हूं। आई कंसिडर एट दिस मोमेंट दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी इज इक्विवेलेंट टू माई सेल्फ if we want to get rid of this thing, and if we don't want people to be affected. That is the reason it's important to get tested and isolated. एब्सोल्युटली सर। और यही क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल शादी हो रहा है, काफी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हाउ मच वी शुड पार्टिसिपेट और व्हाट केयर वी शुड टेक व्हाइल अटेंडिंग इट? एक अजीब सी चीज है, मैं जब कोविड पहले वाले के एंड में मैं एक शादी में गया, मास्क पहन के गया और बकायदा पूरी प्रिकॉशन लेके गया। कोविड करीब करीब उस टाइम पर कम हो गया था, तो लोगों ने लिटरली मेरे मास्क को खींच लिया। मैंने मास्क पहना, मेरी प्लान ये थी कि जाऊंगा 5-10 मिनट मिल के और आ जाऊंगा। एक क्लोज दोस्त के बच्चे की शादी थी। तो मैंने क्या रियलाइज किया कि ये जो भीड़ वाले फंक्शन होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये जो क्राउडेड एरियाज होते हैं ये नहीं होने चाहिए। ये हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए, और अगर हो तो गिनती के लोगों को हो, और अगर कोई खांसी जुकाम का हो तो ना आए, क्योंकि कई बार खांसी जुकाम के बावजूद आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कोविड नहीं लगता। आज के दिन में ये खांसी जुकाम बुखार के साथ में 90% कोविड डिटेक्ट हो रहा है। ना आए, क्योंकि औरों को स्प्रेड करने से क्या फायदा। हमें नहीं मालूम किस आदमी को ये कोविड बुरी तरह से अफेक्ट करेगा और कष्ट देगा। Absolutely, sir. And thank you very much for all your very precise and key messages. I would request attendees to spread this message video. It is available on I Am the Best Mom Facebook page, and from tomorrow it will be available on website as well. So thank you, sir. It is indeed a pleasure to listen to you, and I believe all of us can follow the guidelines. See, I am the best mom if you have to be. Take care of your children as well as your family. And I think everybody should get rid of this, take the precautions we need to take. Thank you very much. Thank you, all of you here. You took some time to be here at this time on, I would say, a weekday. Thank you very much. And thank you very much for being here.
Thank you, sir, and thank you, Dr. Anuj. So he's not there now, but From Dr. Anuj's side, let me say thank you. He's had to rush for an emergency. And absolutely, sir. That is how the doctor's life is all about. So thank you, all the attendees. We'll connect with you for the next week with new episode and one more expert in the domain. Thank you very much.